اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ عابد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور ہمارا آج کا ٹاپک جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے قانون کی ڈیفینیشن، قانون کی اہمیت اور اس کے سورسز، وہ ذرائع جن سے ہم کوئی بھی قانون جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں قانون کی تعریف کے بارے میں۔ آسان لفظوں کے اندر ہم اگر کسی بھی انسان کو سمجھانا چاہیں تو ہم اس کو اس انداز میں سمجھا سکتے ہیں کہ قانون سے مراد ایسی پابندیاں ہوتی ہیں، ایسے اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو ریاست کی طرف سے ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر لاگو کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ لوگ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں۔ یہ ہم کسی بھی عام انسان کو سمجھا سکتے ہیں کہ قانون سے مراد ایسی پابندیاں ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی انسان خوشی خوشی قبول کرتا ہے۔ خوشی خوشی قبول کرنے سے مراد کیا ہے کہ دیکھیے، اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بغیر اجازت کسی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو وہ اس پابندی کو اس لیے خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر کے بارے میں بھی یہی سوچتا ہے کہ کوئی انسان اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام اصول و ضوابط، وہ تمام پابندیاں، وہ تمام قواعد جو انسان خوشی خوشی قبول کرتا ہے اس کو ہم عام الفاظ کے اندر قانون کہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کتاب کی ڈیفینیشن کے حساب سے، تو کتاب کی ڈیفینیشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قانون سے مراد ایسے اصول و ضوابط ہیں، ایسے قواعد ہیں جو ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے لوگوں کے اوپر عائد کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ امن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں، وہ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا سکیں، وہ ایک دوسرے کے جو رائٹس ہیں ان کو انفرنج نہ کر سکیں، ان کو چھین نہ سکیں، ان کو توڑ نہ سکیں۔ یا ہم اگر زمانہ قدیم کی بات کریں تو قدیم دور کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ قانون سے مراد ایک برتر کی طرف سے کسی کمزور کو دیے جانے والا حکم ہے، یعنی کہ جو ایک طاقتور شخص ہے، اس طاقتور شخص کی طرف سے اگر کسی کمزور شخص کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ یہ کام کرے گا، یہ کام نہیں کرے گا، وہ یہ کھائے گا، یہ نہیں کھائے گا، وہ یہ پہنے گا، یہ نہیں پہنے گا، وہ یہاں عبادت کرے گا، یہاں نہیں کرے گا، اور وہ جو کمزور شخص ہے وہ اس کی ان تمام شرائط کو مان رہا ہے، تو زمانہ قدیم کے اندر اس کو قانون سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور کے اندر، جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، آج کے دور کے اندر یہ والی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہم اوتھینٹک ڈیفینیشن جو ہے وہ نہیں مان سکتے۔ زمانہ قدیم کے اعتبار سے یہ تعریف بہتر ہو سکتی ہے۔ آج کے دور کے اعتبار سے ہم کیا کہیں گے کہ قانون سے مراد ایسی پابندیاں ہیں جو حکومت کی طرف سے لگائی جاتی ہیں، جو ریاست کی طرف سے لگائی جاتی ہیں، اس کے ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کے اوپر حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے جو بنائے گئے ادارے ہیں، ان اداروں کے اوپر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ ہر ایک ادارہ جو ہے وہ اپنی اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کر سکے۔ ایسی تمام پابندیوں کو ہم آج کے دور کے اندر، آج کے الفاظ کے اندر ہم اس کو قانون کہہ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں قانون کی اہمیت کے بارے میں، قانون کے مقاصد کے بارے میں کہ قانون کیوں بنایا جاتا ہے۔ پہلی بات جو ڈیفینیشن کے اندر، زمانہ قدیم کی ڈیفینیشن کے اندر میں نے بیان کی کہ قانون سے مراد زمانہ قدیم کے اندر ایک برتر کی طرف سے کمزور کو دیا جانے والا حکم ہے۔ تو آج کے دور کے اندر یہ ڈیفینیشن اس لیے اوتھینٹک نہیں ہے کہ آج کے دور کے اندر جو رائٹس ہیں، جن کو ہم فنڈامنٹل رائٹس بولتے ہیں، جن کو ہم بنیادی حقوق بولتے ہیں، وہ کمزور کے لیے بھی وہی ہیں اور طاقتور کے لیے بھی وہی ہیں۔ آج کے دور کے اندر کمزور کو طاقتور سے بچانے کے لیے جو شرائط طے کی جاتی ہیں ان کو ہم قانون بولتے ہیں۔ قانون کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو ریاست کے اندر رہنے والے کمزور اشخاص ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کو تحفظ دینے کے لیے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کی زندگی کے اندر خوشیاں لانے کے لیے، ان کی زندگی کے اندر امن لانے کے لیے ریاست کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے جو شرائط طے کی جاتی ہیں وہ انسان کی زندگی کو بہت حد تک آسان بنا دیتی ہیں۔ دوسرا، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے آج کے دور کے اندر انسان جو ہے وہ بڑی توگ و دو کرنے کے بعد، بڑی محنت کرنے کے بعد اپنی جو انکم ہے اس کو وہ حاصل کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص 30 دن کام کرتا ہے، 30 دن کام کرنے کے بعد وہ پیسے حاصل کرتا ہے، اس کا معاوضہ حاصل کرتا ہے، وہ معاوضہ حاصل کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے اور راستے میں کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس سے اس کے پیسے چھین لیے ہیں اور وہ اس کی مرضی کے بغیر چھینے ہیں،
तो अब कोई ना कोई ऐसी चीज रियासत के अंदर या कोई ना कोई ऐसी चीज सोसाइटी के अंदर मौजूद होनी चाहिए कि बाआसानी कोई भी शख्स किसी दूसरे से उसकी दौलत को ना छीन सके। एक शख्स ने पूरी जिंदगी मेहनत करके जमीन का कुछ टुकड़ा जो है वो हासिल किया, जहां वो अपने लिए अनाज उगाता है, जहां वो दूसरे लोगों के लिए अनाज उगाता है। कोई आता है और बड़ी आसानी के साथ उसकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो कोई ना कोई शरायत सोसाइटी के अंदर या स्टेट के अंदर ऐसी मौजूद होनी चाहिए कि कोई भी शख्स जो है वो किसी दूसरे की जमीन के ऊपर कब्जा ना कर सके, वो किसी दूसरे की खुशियों को ना छीन सके, वो किसी दूसरे की जिंदगी को जो है वो मुश्किल ना बना सके। तो इस बात से, इन तमाम दलीलों से हम उसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि एक कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसको वो बराबरी देने के कर रहे थे, बराबरी की कि इस्लाम जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नसीहत फरमाई है कि कोई भी शख्स जो है वो किसी से अफजल नहीं है और कोई भी शख्स जो है वो किसी से कमतर नहीं है। यहाँ जो मयार रखा गया है वो रखा गया तकवा की बुनियाद पे। तमाम लोग अल्लाह ताला ने बराबर पैदा किए हैं, बाहैसियत इंसान सबको पैदा किया है। अगर कोई किसी से अफजल हो सकता है या कोई किसी से कमतर हो सकता है तो वो सिर्फ अपने अमाल की बुनियाद पे हो सकता है। अमाल के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम ये मयार तय कर सकते हैं। इस बात से हम जो कानून की अहमियत है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो कमजोर तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो मडियोकर तबके से ताल्लुक रखते हैं, और उनके राइट्स को सिक्योर करना जो है वो रियासत की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा रियासत अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए रियासत के अंदर कुछ शराइत तय करती है जिनको हम अपनी जुबान के अंदर कानून समझते हैं। तीसरी जो चीज आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो है कानून के सोर्सेस। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा जो है वो एक फर्क हमें तलाश कर लेना चाहिए। देखिए, कानून बुनियादी तौर पे दो तरह के हैं, एक इस्लामी कानून है और एक मगरबी कानून है। इस्लामी कानून से मुराद हम बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं कि इस्लामी कानून से मुराद वो तमाम शराइत जो इस्लाम ने हमें बताई हैं, जो अल्लाह ताला की जात की तरफ से हमें तोहफा जो है वो हमें अनायत किया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, या अपने दूसरे अंबिया के जरिए, या अल्लाह ताला के जो अहकामात कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं उनकी सूरत में जो शराइत हमारे तक पहुंची हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इस्लामी कवानीन है। लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो वेस्टर्न लॉ है, जो इंग्लिश लॉ है, वो इम्प्लीमेंटेड है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ जो इंग्लिश लॉ है, जो वेस्टर्न लॉ है, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं और वो हम किन किन तरीकों से जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो वन बाय वन जो है वो हम बढ़ते हैं अपने सोर्सेज की तरफ। जमाने कदीम के अंदर पहली वो चीज जिससे हम इंग्लिश लॉ जो है वो हासिल करते हैं, क्योंकि इंग्लिश की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, तकरीबन 6000 साल का अरसा जो है वो उसके ऊपर इंग्लिश लिटरेचर जो है वो बेस करता है। तो इसलिए इंग्लिश लॉ को ज्यादा इस एरा के अंदर लोग जो वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक, वेस्टर्न थ्योरी के मुताबिक उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। उसकी बेस पे हम बात करते हैं कि जमाने कदीम के अंदर कुछ काम ऐसे होते थे जो आज के दौर में भी किए जाते हैं। इनको आज के दौर के अंदर हम क्या नाम देंगे? इनको नाम दिया जाता है कस्टम्स का, इनको नाम दिया जाता है ट्रेडिशंस का। रस्मो रवायात का जो मजमुआ होता है वो एक सोर्स है, वो एक जरिया है कि हम जो है वो कानून उससे हासिल करते हैं। मसलन हम अपने बड़ों को कोई काम करता हुआ देखते हैं तो उसको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते हैं और उसको अपनी जिंदगी के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं और अपने बच्चों को भी वही तलकीन करते हैं। तो वो बच्चे भी हमें देखते हुए जो है वो उसी चीज के साथ साथ वो ग्रो करते हैं, उसी चीज को सीखते हुए, उसी चीज को देखते हुए वो जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो वो तमाम तरीकाकार जो हमारे बड़े करते थे या उनके बड़े करते थे या उनके बड़े करते थे, उन तमाम तरीकों को हम अपनी जुबान के अंदर क्या कह सकते हैं? कस्टम्स कह सकते हैं, रवायात कह सकते हैं। तो पहला जो सोर्स है हमारे कानून का जिससे हम कानून हासिल करते हैं वो है रस्म रवाज। और रस्म रवाज के बारे में मैं आपको एक लतीफ़ा जो है वो आपके साथ सुनाता हूँ। वो एक शख्स था जो किसी के यहाँ मेहमान बन के चला गया। तो जब वो मेहमान गया, रवायात क्या है कि जब भी कोई मेहमान आएगा उसकी खातिर तवाज़ु की जाएगी, उसके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाएगा।
अगर वो रात रुकना चाहता है तो उसके लिए मुनासिब बिस्तर का बंदोबस्त किया जाएगा, साफ सुथरी जगह का बंदोबस्त किया जाएगा। तो मेहमान किसी के यहाँ चला गया, अब जो मेज़बान था उसने खूबसूरत दस्तरखान लगाया और उसके ऊपर बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। वो जो मेहमान था वो जब दस्तरखान के ऊपर बैठा तो उसने देखा कि बिल्कुल दस्तरखान के साथ ही एक लकड़ी का टुकड़ा जो है पड़ा हुआ है। तो उसने मेज़बान से पूछा कि ये लकड़ी का टुकड़ा क्यों रखा हुआ है। मेज़बान ने बताया कि ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों रखा हुआ है, हमारे बड़े ऐसा किया करते थे। तो उसने कहा जी मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ, हो सकता है कि आपके यहाँ जो है वो ये रिवाज हो कि आप मेहमानों को खाना भी खिलाते हैं और साथ उनको मारते भी हैं। तो मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ, आप ऐसा कीजिए कि आप ना किसी बड़ी उम्र के बंदे से मिलवाइए, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। तो गांव में बड़ी उम्र के बंदे के पास ले गए, बड़ी उम्र के बंदे से पूछा गया कि ये दस्तरखान के साथ हम लकड़ी रखते हैं, ये क्यों रखी जाती है। तो बुजुर्ग ने बताया कि मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि ये क्यों रखी जाती है, लेकिन हम इससे थोड़ी बारीक रखते थे। तो वो मेज़बान जो है वो उसने फिर उसको मुतमिन करने की कोशिश की, मेहमान ना मुतमिन हुआ, उसने कहा नहीं इससे भी बड़ी उम्र के बंदे के पास लेके जाओ। तो अल मुख्तसर ये है कि वो गांव में जो सबसे बड़ी उम्र का बंदा था उसके पास लेके गए, उससे पूछा गया कि ये जो लकड़ी है ये हम क्यों रखते हैं। तो उसने बताया कि ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों रखी जाती है, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि हम इसको दांतों में मारने के लिए रखा करते थे, दांतों से जो है वो खाना निकालने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो आप देखिए कि वो बात जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी और वो आगे एक रवायत बन गई, वो एक कल्चर का हिस्सा बन गया कि वो बढ़ते 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 एक छोटी सी टूथपिक से वो एक बहुत सारी लकड़ी का टुकड़ा बन गया जो दस्तरखान के साथ रवायत के तौर पर रखा जाता है, जो एक रस्म बन गई है। सो पहला हमारा जो सोर्स है वो कस्टम्स है। दूसरा जो हमारा सोर्स है जिससे हम कानून जो है वो हासिल करते हैं वो है रिलीजन, हमारा जो मजहब है। हम अपने मजहब से भी अपना कानून जो है वो बनाते हैं। जैसे देखिए दुनिया के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं, उनका अपना अपना इबादतों का तरीका है। मुसलमानों का अपना इबादतों का तरीका है, वो मसाजिद के अंदर जाके इबादतें करते हैं, क्रिश्चियंस चर्च के अंदर जाके इबादत करते हैं, हिंदू जो है वो मंदिर के अंदर जाके इबादत करते हैं, सिख कम्युनिटी जो है वो गुरुद्वारों के अंदर जाके अपनी मजहबी रसूमात जो है वो अदा करती है। तो दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहब हैं उन सब के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब उन्होंने अपने बड़ों को बेसिकली इबादत उन तरीकों से करते हुए देखा है, जैसे मुसलमान जो है वो मुसलमान के यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने वालिद को या अपने दादा को, अपने नाना को एक तरीके के मुताबिक नमाज अदा करते देखता है, तो उसी के मुताबिक वो उसी सिलसिले को आगे लेके चलता है। सो दूसरा जो हमारा सोर्स है वो मजहब है जिससे हम कानून हासिल करते हैं। तीसरा हमारा जो सोर्स है वो हमारे अदालती फैसले होते हैं। अदालत के अंदर जब भी कोई मुकदमा चलता है, उस मुकदमे के ऊपर ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद जो रिस्पेक्टेबल जज है या जस्टिस है उसकी तरफ से एक फैसला दिया जाता है। आने वाले दौर के अंदर जब भी कोई मुकदमा अदालत के अंदर पेश किया जाएगा और वो उसी नौयत का होगा तो उसके अंदर वो पुराना जो केस है उसका हवाला दिया जाएगा कि फलां वक्त के अंदर फलां जज साहब की अदालत में ये मुकदमा गया था, इसी नौयत का वो मुकदमा था और उसके ऊपर जज ने ये फैसला दिया था, लिहाजा इस केस के अंदर भी उसी फैसले के मुताबिक, उसी जजमेंट के मुताबिक जो है वो फैसला आना चाहिए। इसको हम लॉ की लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं केस लॉ। यानी कि एक मुकदमा जो है वो पहले हो चुका है, उसके ऊपर एक जजमेंट आ चुकी है। जैसे आज भी आप देख रहे होंगे कि अदालत के अंदर एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो सिविलियंस हैं पाकिस्तान के अंदर उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। तो जो उसके अपोनेंट लॉयर हैं वो जाके अदालत के अंदर क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अदालत में कोई भी इससे पहले एक मुकदमा जो है वो पेश किया जा चुका है जिसमें रिस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कह चुकी है कि हम मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल जो है वो नहीं चला सकते, लिहाजा ऐसा कोई भी काम जो है वो नहीं किया जा सकता। सो उसके ऊपर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले से फैसला मौजूद है, लिहाजा जो है वो जजमेंट पेश की गई है। अब इसके जरिए जो है ना वो बड़ा आसान होता है किसी भी फैसले को इम्प्लीमेंट करना। सो अदालत जो फैसला करती है, जो जजमेंट देती है, वो भी एक सोर्स होता है। उसके बाद जो माहिरीन होते हैं, जैसे जो दौलत के मामलात को समझता है उसको हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जो सोच विचार करने वाला है उसको हम थिंकर बोलते हैं, जो वाइज
मैन होता है उसको हम फिलोसफर बोलते हैं। उसी तरह जो अदालत के अंदर मुकदमात होते हैं, उन मुकदमात की जो तशरीह करता है उसको भी हम जो है वो अदालती माहिर बोलते हैं, अदालती कानून का माहिर बोला जाता है। लिहाजा ये भी जो है वो हमारा एक सोर्स है। सो ये वो तमाम सोर्सेज हैं जिनकी बेस पे हम अपने जो मुकदमात हैं उनको किसी न किसी सोर्स के ज़रिए जो है वो हासिल करते हैं और उसको हम आम ज़िंदगी के अंदर आम लोगों तक जो है वो पहुंचाते हैं। सो ये हमारे सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज के ज़रिए हम अपना जो कानून है वो हासिल करते हैं और उससे हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। शुक्रिया।